Okay, now yesterday we were discussing here the abdominal aorta, and I told you its introduction, its origin or its beginning, its termination, its important relations, and then its branches. As far the branches are concerned, we divided that into four easy groups here. One is the parietal branches, out of which the paired parietal branches. Paired parietal means those branches which are bilateral and supplying the body walls, like the diaphragm, inferior phrenic, like the lumbar arteries, then the subcostal also, supplying the posterior body wall as well as diaphragm. And then there was one more that is called the unpaired parietal artery, that was the median sacral artery. These were the four branches which are parietal. But there are certain branches which are visceral also. Bilateral visceral, starting from suprarenal glands. And suprarenal gland was actually having two other sources also, not just the suprarenal, and that suprarenal was precisely middle suprarenal, but the superior suprarenal was coming from inferior phrenic, and the inferior was coming from renal. And similarly, there are two renals and the two gonadals also, supplying ovary or the testis, whatever the case may be. लेकिन उसके बाद जो हमारा टारगेट है ना, जो आगे चल के हमें वीनस ड्रेनेज में भी काम आएगा, पोर्टल सिस्टम में, उसको यहाँ जानना बड़ा ज़रूरी है. उसका शेप, आर्टरियाँ कैसे स्प्रेड हैं, ताकि जब आर्टरी को मैं बनाऊँ ना तो आपको आइडिया आ जाए ये फलां आर्टरी है. और वो थी तीन आर्टरीज, वन वाज द सीलियक आर्टरी, अनदर सुपीरियर मेसेंटेरिक, अनदर वाज द inferior mesenteric artery, and they are supplying the three gut portions here, the foregut, the midgut and the hindgut. वो मैंने आपको बताया था गट के ये तीन portions जो हैं उनमें कौन कौन से components उनके अंदर आएंगे, कौन से उनके members होते हैं. तो foregut was actually the esophagus, then the stomach and half of duodenum. half नहीं, अब half नहीं कहेंगे. The spot where the bile duct is opening in the duodenum, यहाँ तक आप लाइन ड्रा कर देंगे. ये एक तरह से यूँ समझ लो कि इसका एरिया है, जिससे पहले फोरगट है, उसके बाद अब मिडगट है. So that means second part of duodenum half, then horizontal part, that is the third part, then the fourth, then the entire jejunum, entire ileum, then the cecum, appendix, ascending colon, and the part of the transverse colon. But how much? Either it can be half, or can be right 2/3, or can be right 1/3 even. तो right 1/3 और left 2/3 पर junction है, लेकिन precisely anatomy में माना जाता है right 2/3 और left 1/3 की junction. Means right 2/3 will be in midgut and the remaining 1/3 will be in hindgut. कुछ बुक्स में तो इतना भी लिखा हुआ है कि इवन स्प्लिनिक फ्लेक्चर तक का hindgut है, मिडगट है, यानी पूरा ट्रांसवर्स कोलोन जो है उन्होंने मिडगट में शामिल किया है. लेकिन आप एक ही चीज़ पर रखें, आप नहीं कि ये हाफ है कि 1/3 है कि 2/3 है, आप सीधा सीधा बोलें 2/3 राइट वाला और 1/3 लेफ्ट वाला. इसकी जंक्शन जो है ये है आपकी मिडगट और हाइंडगट की जंक्शन. और उसके बाद आपका हाइंडगट शुरू है कहाँ तक? एनल कैनाल तक. कितना? हाफ ऑफ एनल कैनाल. ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसमें हर गट के पोर्शन का, हर गट के डिवीजन का एक अपना आर्टरी है. जैसे सीलियक आर्टरी, और सीलियक आर्टरी को क्विकली दोबारा रिकैप करो तो यहाँ पर हम देखें कि सीलियक आर्टरी कैसे स्प्रेड किया हमने. इसको स्प्रेड किया हमने लाइक दिस. तो यहाँ हमने देखा क्या, ये सीलियक आर्टरी ने 3 ब्रांचेस बनाई. अब देखिए जैसे ये आर्टरी मैंने इस तरीके से बनाई लाइक दिस और लेसर कर्वेचर के अपर हाफ तक ले आया, तो ऐसे जो आर्टरी आए तो यकीनन यही वो आर्टरी होगी जिसकी एक ब्रांच जो होगी वो इसोफेगस की तरफ भी जाएगी, है कि नहीं. तो इसकी एक ब्रांच इसोफेगस, तो इसोफेगस एंड लेसर कर्वेचर पोर्शन अपर हाफ, इसके जोन में. ये नहीं कि लेसर कर्वेचर, इसका मकसद है कि यहां से जाती हुई आगे से भी और पीछे से भी ब्रांचेस, इतना हिस्सा ये सप्लाई होगा इस लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी से. तो फर्स्ट ऑफ द ब्रांचेस ऑफ योर सीलियक इज लेफ्ट गैस्ट्रिक, और इसका इतना ही सोर्स है. उसके बाद जो सेकंड ब्रांच थी वो मैंने आपको बताया कि ये क्या है, ये जिगजैग टार्चुअस ओवर द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द पेंक्रियाज बिहाइंड द स्टमक चलती रहेगी. और बिहाइंड द स्टमक जो भी कंटेंट्स आ जाए ना आपके, उनको स्टमक बेड भी कहते हैं, यानी स्टमक इनके ऊपर लेटा हुआ है, ये बिस्तर है स्टमक का. तो स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टमक बेड इंक्लूड पेंक्रियाज, splenic artery, and spleen itself also,
एंड सम मोर स्ट्रक्चर जो आप चल के देखेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये भी, और ऐसा ही चलते चलते जाओगे तो तुम्हारी राइट किडनी भी, लेफ्ट किडनी भी, और उसका सुपरारेनल ग्लैंड, ये सारे बिस्तर में आ जाएंगे। इसको स्टमक बेड कहते हैं, स्टमक बेड। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरी आर्टरी थी स्प्लीनिक, और उन्होंने यकीनन पेंक्रियाज को भी सप्लाई किया होगा, उसकी पेंक्रियाटिक ब्रांचेस भी हैं, और इसके साथ साथ इन्होंने स्प्लीन को सप्लाई किया, और इन्होंने ये 3 से 4 ब्रांचेस फंडस को भी दिए हैं। इनको हम कहते हैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज। सोर्स बनता जा रहा है। जब आपसे सीधी सीधी ब्लड सप्लाई पूछ लेना अगर कोई स्टमक की, तो आप उसके 4-5 सोर्सेज लिख सकते हो। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा? चलें कुछ भी ना जाएं, सीलिएक आर्टरी में चले जाएं, आप एओर्टा में ना जाएं, चलें तो सीलिएक आर्टरी को फोकस करें, और सीलिएक आर्टरी से लेफ्ट गैस्ट्रिक कंट्रीब्यूशन है, स्प्लीनिक कंट्रीब्यूशन है, और स्प्लीनिक की कौन सी कंट्रीब्यूशन? शॉर्ट गैस्ट्रिक। और इसको लगे हाथों यहां से भी आप ड्रा करें तो अपर हाफ ऑफ ग्रेटर कर्वेचर भी हो गया, तो सीधा बोलें कि ये यहां से भी और इसके साथ पीछे से भी कितना अपर हाफ, जिसका मकसद है कि ये लेफ्ट, और लेफ्ट इसको नाम लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक आर्टरी कहते हैं इसको, जिसका आदि लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलॉइक आर्टरी। थर्ड सोर्स मिल गया। अब थर्ड सोर्स, तो इसका मकसद है कि यहां तक का तो खेल चला गया, अब नीचे का खेल रहता है। इसका मकसद है कि ये एरिया कौन सी होगी? ये लेसर कर्वेचर का लोअर हाफ, और ये ग्रेटर कर्वेचर का लोअर हाफ, ये वाली एरिया बच गई है, ये वाली एरिया बच गई है। तो इसके साथ है, अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है तो नीचे राइट गैस्ट्रिक है, अगर ये लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलाइक है तो यहाँ राइट गैस्ट्रोएपिपोलाइक। अब राइट गैस्ट्रोएपिपोलाइक आती है यहाँ पर। अब आती है क्यों? क्योंकि ये 2 ब्रांचेस तो आपने देख ली, एक लेफ्ट गैस्ट्रिक, एक स्प्लीनिक, तो अब एक ब्रांच बाकी, जो थर्ड ब्रांच ऑफ द सीलिएक बाकी है वो हेपेटिक। बेसिकली उसको कहते हैं कॉमन हेपेटिक। अगर आप हेपेटिक भी कह दो तब भी ठीक है, लेकिन उसको कहते हैं क्या? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब ये कॉमन हेपेटिक आर्टरी यहां से निकाल रहे हैं हम लोग। अब ये थर्ड आर्टरी जो हमने, अब देखें ये चीज आप यहां समझे, जो आर्टरी अगर मैं स्टमक को बना के सिर्फ सीलिएक दिखाऊं ही ना, स्टमक को बना के मैं लेसर कर्वेचर तक ये आर्टरी ले आऊं, तो आप समझ जाएंगे ना कि ये लेफ्ट गैस्ट्रिक है। और इसी जगह पर अगर कोई मैं वेन छाप दूं तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी। अगर मैं ग्रेटर कर्वेचर के साथ नीचे यहां ये ब्रांच बनाऊं तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होगी। अगर वेन हो तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी। अगर मैं यहां से ये ब्रांचेस ऐसे उठाऊं तो इनका नाम डाल दूंगा मैं शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, लेकिन वेन्स हो तो शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन। ये समझ रहे हैं ना आप? तो ये इस तरीके से यहां पर होंगी। अब ये जब आपने यहां पे देखी, और ये स्प्लीनिक आर्टरी है, अगर मैं स्प्लीनिक आर्टरी के साथ जिगजैग करती हुई मैं एक और वेन दिखा दूं तो स्प्लीनिक वेन, समझ गए? और इसी से निकलती हुई ये सारी चीजें। अब यहां पर मैंने तीसरी जो यहां वेन बनाई होगी, यहां से ये, तो ये तीसरी वेन होगी कौन सी? और तीसरी आर्टरी होगी कौन सी? कॉमन हेपेटिक आर्टरी। और कॉमन हेपेटिक आर्टरी स्टमक के करीब अगर रिलेशन डेवलप करे अगर तो ग्रेटर कर्वेचर के साथ, के लेसर के साथ, तो पहली ब्रांच फर्ज बन जाएगा हेपेटिक का कि मैं सबसे पहले लेसर कर्वेचर को दूं, अपर हाफ को, लोअर हाफ को, तो लोअर हाफ को दूं। और अपर हाफ के साथ कौन सी? लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो लोअर हाफ के साथ कौन सी? तो राइट गैस्ट्रिक और लेफ्ट गैस्ट्रिक आपस में यहां मुलाकात करेंगी और इनका एनास्टोमस बन जाएगा। ये आपका चौथा सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ योर स्टमक सप्लाई होता जा रहा है। इसोफेगस सप्लाई हो चुका, क्यों? फोरगट सप्लाई करने हैं, उसके सारे मेंबर्स को खिलाना है आपको। किसको? सीलिएक आर्टरी को, क्योंकि सीलिएक आर्टरी शी इज द मदर ऑफ ऑल दीज चिल्ड्रेन, तो सबको देना है। अब यहां से ये देखा, उसके बाद ये क्या करेगी? हेपेटिक आर्टरी जारी रहेगी, जारी रहेगी। अब क्या लेसर कर्वेचर के साथ के ड्यूडेनम के ऊपर? क्योंकि आपको पता है ना, लेसर कर्वेचर विल नाउ बिकम कंटिन्यूअस विद द अपर बॉर्डर ऑफ, एंड ग्रेटर कर्वेचर बिकम्स कंटिन्यूअस विद द लोअर बॉर्डर ऑफ द ड्यूडेनम। तो ये अपर बॉर्डर ऑफ ड्यूडेनम के साथ होगी। अब अपर बॉर्डर ऑफ ड्यूडेनम के साथ चलती चलती ये ऊपर चली जाएगी इनटू व्हाट? इनटू द हाइलम ऑफ पोर्टा हेपेटिस, जिसको हम कहते हैं क्या फुल, कि वहां से होती हुई 2 में स्प्लिट हो जाएगी, एक राइट और एक लेफ्ट। चलो वो तो जाएगी सो जाएगी, लेकिन जैसे ये ड्यूडेनम के ऊपर से पास होगी, मैंने बताया ये ड्यूडेनम को एक ब्रांच दे देगी। वो ड्यूडेनम को जो ब्रांच देगी वो ड्यूडेनम के पीछे जाएगी, बैक में वो छुप गई है, तभी इसको ब्रोकन लाइन के साथ इसने डिस्कस किया। और जैसे ड्यूडेनम खत्म तो आ गया ना आपका पेंक्रियाज, वो सी शेप कर्व आ गई जिसमें फंसा है कौन? पेंक्रियाज। और ये जैसे मिली यहां पर, तो ये क्या करने वाली है? ये पहली ब्रांच क्या सिर्फ, अब इसका देखिए मुकाबला किसके साथ है? क्या पेंक्रियाज के साथ नहीं है? क्या ड्यूडेनम के साथ नहीं है? क्या इसकी ग्रेटर भाई पेंक्रियाज के साथ है, ड्यूडेनम के साथ है, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के किस हिस्से के साथ है? लोअर मार्जिन के साथ। और लोअर मार्जिन किसके साथ कंटिन्यूअस है? ग्रेटर कर्वेचर के साथ। तो क्यों नहीं ग्रेटर कर्वेचर को भी एक ब्रांच दे दे? अपर हाफ, लोअर हाफ? तो अपर हाफ के साथ कौन आ रहा था उधर से? लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपोलाइक आ रही थी, तो इसका नाम क्या पड़ जाना चाहिए? राइट गैस्ट्रोएपिपोलाइक।
तो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रोपिलाक आपस में मिल गई और आपको पांचवा सोर्स मिल गया ब्लड सप्लाई का। इसका मकसद है कि मैं ग्रेटर कर्वेचर के साथ अगर आपको कोई आर्टरी दिखाऊं तो अपर हाफ विल बी लेफ्ट गैस्ट्रोपिलाक एंड लोअर हाफ विल बी राइट गैस्ट्रोपिलाक। यहां आर्टरी है, अगर मैं वेन छाप दूं स्टमक बना के मैं राइट ग्रेटर कर्वेचर के साथ वेन्स बना दूं तो समझ जाना है कि ये दो वेन्स कौन सी। और अगर मैं लेफ्ट के साथ जहां जो आपका लेसर कर्वेचर है उसके साथ वेन्स बना दूं तो समझ जाना कि अपर पार्ट में होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो इसका मकसद यह है कि तुम्हारे ईसोफेगस को कौन सप्लाई कर रहा होगा, उसकी ड्रेनेज कौन ड्रेन कर रहा होगा उसको, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी। और इसी तरीके से यहां पर जैसे ये आर्टरी आई उसने एक ब्रांच तो गैस्ट्रिक को दे दी, एक ब्रांच उसने ड्यूडिनम को दे दी, तो हमने नाम डाल दिया गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। तो ये गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ये ट्रंक था गैस्ट्रोड्यूडिनल जिसने एक गैस्ट्रिक ब्रांच दी, गैस्ट्रिक के गैस्ट्रोएपिप्लॉइक, और दूसरी ड्यूडिनल। क्या ड्यूडिनल के पेंक्रियाज को भी दी है तो पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी नाम पड़ जाएगा। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल की कितनी ब्रांचेस हो गई, एक है राइट गैस्ट्रोएपिप्लॉइक और एक पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल। कौन सी पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल, ऊपर से आ रही है, क्यों, क्योंकि इसको नीचे जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना भाई, क्योंकि मिडिल ऑफ द ड्यूडिनम तक आके फोरगट खत्म हो जाता है, इससे पार ड्यूडिनम है, लेकिन सीलिक आर्टरी की ये ब्रांच इसकी लास्ट ब्रांच है, ये आगे नहीं जाएगी इससे। वजह क्या है, वजह यह है कि ये फोरगट की आर्टरी है, क्योंकि ड्यूडिनम का जो लोअर हाफ है वो मिडगट में आता है, उसकी जिम्मेदारी फिर सुपीरियर मेसेंटेरिक को उठानी होगी, इसको नहीं। यहां तक आ गया समझ में। तो इन आर्टरियों का आर्गन के साथ रिलेशन डेवलप जब हो जाएगा तो जहां से जैसे आपने देखा कि सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल है तो वेन, अगर ये आर्टरी सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल है तो ऐसी वेन भी इसी तरीके से यहां पर मौजूद होगी। तो आर्गन और लोकेशन के हिसाब से मैं अगर कभी भी वेन बना दूं तो समझ जाना कौन सी वेन होगी, मैं चाहे लेबल करूं ना करूं, समझ गए। अब यहां से मैंने अगर ब्लू कलर की वेन बना दी तो तुम समझ जाओगे ना, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल वेन। यहां से बना दोगे तो पांचों सोर्सेज स्टमक के हिसाब से ही समझ जाएंगे हम लोग। और अगर मैंने ये भेज दी ऊपर, कौन, हेपेटिक आर्टरी, तो अगर हेपेटिक आर्टरी भेज दी है तो ये क्या समझते हैं कि हेपेटिक आर्टरी इधर चली गई तो इधर तो फिर पेंक्रियाज, यहां तो फिर गॉल ब्लैडर भी है, कोई मसला नहीं है। ये जो आपकी राइट ब्रांच है इससे लटका दूंगा मैं एक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, मेरा गॉल ब्लैडर भी सप्लाई, लिवर भी सप्लाई, 30% सप्लाई उसको जो ऑक्सीजनेटेड थी वो भी मिल गई, ड्यूडिनम का हाफ भी सप्लाई, स्टमक पूरा सप्लाई, इसोफेगस और स्प्लीन सप्लाई। अब मुझे आप बताएं, और पेंक्रियाज सप्लाई, पेंक्रियाज का छोटा ऐसा रह गया, चलो ठीक है, वो मिड ब्रेन वो मिड गट की सप्लाई से आ जाएगा, थोड़ा सा ऐसा एंसाइनेट प्रोसेस वगैरह भी हम सप्लाई कर देंगे बाद में, लेकिन मोस्ट ऑफ इट विल बी सप्लाइड बाय foregut arteries. So you see that your foregut has been supplied. All the members of the foregut they have been fed by the celiac artery. क्योंकि यही ये फोरगट की मदर है, शी इज द मदर ऑफ द ऑल फोरगट ऑर्गन्स। ये सारे बच्चे जो हैं उनको सबको नाश्ता मिल चुका। अब ये जो सारी चीजें आपने यहाँ पे देखी, उसकी जगह पर मैं वेने बना दूंगा, मैं बोलूंगा नहीं मुंह से, आप बताएंगे मुझे कि कौन सी चीज, थोड़ा सा मैं गाइड कर दूंगा, मैं लेबल भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। मैं डायग्राम क्या, मैं शेप बनाऊंगा आर्टरी का, और आर्टरी के शेप्स के हिसाब से आप समझ जाएंगे क्या है। लेकिन अब ये जो मैं बना रहा हूं ऊपर, ये जो भेजी है मैंने, क्या, हेपेटिक आर्टरी, इसकी जगह पर वेन कौन सी होगी, हेपेटिक वेन नहीं होगी, क्योंकि आपको याद है ना, हेपेटिक वेन वो होती है जो लिवर से निकल रही होती है, जा नहीं रही होती। तो आप क्या समझते हो, क्या हेपेटिक आर्टरी ऐसे जाएगी, कोई वेन नहीं जाएगी क्या, वेन जाएगी, वो होगी पोर्टल वेन, जो हमने अभी बनाई नहीं है, तो वो होगी पोर्टल वेन। तो इसका मकसद है कि फिर पोर्टल वेन में ही हम डालेंगे सिस्टिक वेन भी, बिल्कुल ऐसा ही है, पोर्टल वेन में सिस्टिक वेन डालेंगे, क्योंकि हम हेपेटिक आर्टरी है तो हेपेटिक आर्टरी के करस्पॉन्ड नहीं होगी हेपेटिक वेन, क्योंकि हेपेटिक वेन होती है वो ब्लड को डिटॉक्सिफाई करके आखिर में डिऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो लिवर के टॉप से निकल के इंफीरियर वेना केवा में जाता है। ये चल के हम यहां पे देखेंगे। अब देखें दूसरी आर्टरी जो हम लेके आ रहे हैं, अब है शी इज द मदर ऑफ द मिडगट। नाउ मिडगट माने हाफ ऑफ द ड्यूडिनम, देन जेजुनम इलियम फुल, फिर सीकम अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन का आधा, आधा मीन्स राइट टू थर्ड। अब यहां पर आप उसको देखें, यहां पर लेकिन आप उसका शेप जरूर देखें, यानी जगह देखें उसकी लोकेशन, ताकि मैं जब वेन बनाऊं ना तो आपको आइडिया हो जाए कि ये फला वेन की बात हो रही है। आर्गन बनाए ही ना हम, पता ही चल जाए हमें। और यहां ये देख रहे हैं आप क्या, हेपेटिक आर्टरी, और ये देख रहे हो आप हेपेटिक आर्टरी की दो ब्रांचेस, और राइट हेपेटिक आर्टरी से निकल रही है ये सिस्टिक आर्टरी। फिर आपने देखा, ये आप दोबारा भी देख लो, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये स्प्लीनिक,
स्प्लीनिक से जो पेंक्रियाटिक उसमें आएंगी सो आएंगी, फिर राइट गैस्ट्रोएपिपलाइक और ये गई शॉर्ट गैस्ट्रिक, और शॉर्ट गैस्ट्रिक के बाद ये हेपेटिक आर्टरी हमने देखी, इसको हम कॉमन हेपेटिक आर्टरी कहते हैं। अब कॉमन हेपेटिक आर्टरी जैसे ऊपर गई है ना, कॉमन हेपेटिक आर्टरी जैसे ऊपर गई, सबसे पहले इसने क्या दिया, राइट गैस्ट्रिक, और उसके बाद क्या निकाला इसने, गैस्ट्रोड्यूडिनल। गैस्ट्रोड्यूडिनल के बाद जब गई तो अब रास्ते में कुछ नहीं देगी, ये सीधा लिवर में चली जाएगी। फिर गैस्ट्रोड्यूडिनल देने के बाद के हिस्से का नाम वहां पर फिर होता है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। पहले कॉमन हेपेटिक, रास्ते में कितने मुसाफिर उतारेगी, 2, एक राइट गैस्ट्रिक और एक गैस्ट्रोड्यूडिनल। गैस्ट्रोड्यूडिनल के बाद का सफर जो है अब कोई मुसाफिर नहीं उतारना इसको, अब सीधा जाना है और जाके 2 में बाइफरकेट होना है। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल के बाद के सफर का नाम है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी, लेकिन अगर आप उसको हेपेटिक भी कह दें तब भी चलेगा। तो उसमें से क्या निकला है, राइट गैस्ट्रिक, जिसने लेफ्ट गैस्ट्रिक के साथ अलॉन्ग द लेसर कर्वेचर एनास्टोमस बनाया है। फिर निकली है गैस्ट्रोड्यूडिनल, और गैस्ट्रोड्यूडिनल से क्या निकला, लेफ्ट गैस्ट्रोएपिपलाइक, सॉरी राइट गैस्ट्रोएपिपलाइक, ये लेफ्ट में गलती से लिख गया हूं, ये राइट गैस्ट्रोएपिपलाइक, और निकली है कौन सी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडिनल आर्टरी। और फिर लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस ऑफ हेपेटिक, किस हेपेटिक की, प्रॉपर हेपेटिक की, और इसके बाद सिस्टिक आर्टरी हमने वहां से निकाल के ले आए हैं। अब यहां पर हम देखें सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसको देखें। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी में क्या करना है, उसकी बिगिनिंग बड़ी टिपिकल, बिगिनिंग उसकी ऐसा सच टिपिकल नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी आप यहां पर देखेंगे ना कि बिगिनिंग के बाद उसका जो मिडिल कोर्स होगा ना, जो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद उसकी टर्मिनेशन, फिर उसकी ब्रांचेस, और ब्रांचेस किसको, मिडगट के आर्गन्स को, और वो कैसे अपनी ब्रांचेस को फैलाती है, इनको जनरली आपको देखना होगा, ताकि मैं जब वेन्स बनाऊं ना जब आपको, तो आपको आइडिया हो जाए कि किस वेन की बात हो रही है। उसके शेप से ही, उसके कोर्स से ही आपको अंदाजा हो जाएगा तब जब आप आर्टरी देखेंगे, क्योंकि आर्टरी के साथ सोई होगी वेन भी। मैं जब वेन बनाऊंगा तो मैं आर्गन नहीं बनाऊंगा, वेन बनाऊंगा आप समझ जाएंगे कि ये लेसर कर्वेचर के साथ ये जेजुनम के पास गई होगी, शेप इसका इस तरीके से होता है कोर्स, तो उससे आइडिया हो जाएगा। इससे आपका एक विनस सिस्टम डेवलप हो जाएगा नया, जिसका एक मेंबर होगा, उसका नाम होगा, ये सारा गंद बला ज्वाइन करके एक ही वेन बन जाएगी। इन सब से मिलके, ये जितनी भी आर्टरियां बता रहा हूं, इनसे मिलके इनके साथ लेटी हुई होती है वेन्स, और वेन का अरेंजमेंट किस तरीके से होगा कि आखिर में बनेगी एक चीज, नाम होगा उसका पोर्टल वेन। समझ गए? तो ये इस तरीके से यहां पर होगा। चल के देखें, आप देखिए सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, इसकी देखें बिगिनिंग ये कहां से हो रही है, कहां से हो रही होगी, जाहिर है एओर्टा से। सेकंड ब्रांच है कौन सी, अनपेयर्ड विसरल ब्रांच, जो फ्रंट से निकलेगी। जब निकल रही होती है तब एओर्टा छुपा हुआ होता है पेंक्रियास से, क्योंकि ये पेंक्रियास के बैक में जाता है। चलें देखें यहाँ पर, ये देखें एओर्टा है, इस वक्त छुपा है किसके पीछे, बॉडी ऑफ पेंक्रियास के पीछे। और बॉडी ऑफ पेंक्रियास के पीछे आपको तो पता ही नहीं चला, इसके पीछे उसने एक ब्रांच दे दी है, यानी इसमें छुपी हुई उसके पेट से एक आर्टरी ने जन्म लिया है, नाम है उसका सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो क्या नजर आएगी क्या इधर, नहीं। अब इधर से नजर नहीं आएगी, ये ऐसे छुपी हुई है, यानी मैं यहां हूं, मैं बोर्ड के पीछे हूं, ये बोर्ड मेरे आगे। अब बोर्ड जो है वो पेंक्रियास है और मैं एओर्टा हूं, यहां से ब्रांच निकली है। अब मुझे सप्लाई करना है जेजुनम इलियम, क्या वो पोस्टीरियर बॉडी वॉल के साथ चिपके हुए हैं कि कैविटी में है, और कैविटी में है, तो कैविटी में आने के लिए मुझे पहले तो जान छुड़ानी होगी पेंक्रियास से। समझ गए? मुझे तो पहले पेंक्रियास से जान छुड़ानी होगी। अब पेंक्रियास से जान छुड़ाने के लिए नेचर ने देखो क्या दिया है, नेचर ने तुम्हें ये दिया है हेड। अब यहां से देखें, ये हेड है, हेड का मोस्ट ऑफ द पोर्शन है, और एक छोटा सा प्रोसेस है, नाम था इसका अनसाइंडेड प्रोसेस। और ये आपको देखें ना, ये चीज हमारा, आप हैंड और बाकी को देखें आप, ये देखिए, ये आपका हैंड का ये डॉर्सम है, ये हमारा थंब है, ये समझ लो कि अनसाइंडेड प्रोसेस है, और ये है गैप। अगर ये गैप है तो खुद आप सोच सकते हैं कि अगर मैं एओर्टा यहां ये दिखाऊं एओर्टा, तो एओर्टा शुरू में नजर आया, आ गया, चलो, बाद में तो छुपा हुआ है, उसके बाद भी नजर आया। लेकिन मसला यह है कि ये ब्रांच यहां से निकली है। अगर ये ब्रांच इधर से निकली है तो इस ब्रांच को यहां से निकाल के मैं इधर से निकालूंगा। कहां से? यहां से। अनसाइंडेड प्रोसेस और रेस्ट ऑफ द हेड के बीच में क्लेफ्ट से, वो ये देखें निकल के आ गई। ये देखें कैसे आ गई। क्या ये आपको नजर आ रही है कि ये एओर्टा से निकल रही है? क्योंकि ये छुपी है किससे? पेंक्रियास से। और पेंक्रियास के पीछे छुपने से कुछ नहीं होगा। आगे जेजुनम इलियम के 20 फीट एरियाज हैं, इनको सप्लाई करने के लिए निकलो बाहर पहले घर से, और घर से ये ऐसे बाहर निकल के आ गई। तो ये निकल के आ, जैसे निकली तो आपको पता है ना कि ये पेंक्रियास के नीचे क्या होता है, थर्ड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम। तो इसका मकसद है क्रॉस करो उसको, अब तो कोई मसला नहीं है।
अब क्रॉस करके आप लेते आओ इस आर्टरी को, ये कौन सी आर्टरी मैं देख रहा हूं, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इसको मैं चलाते 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 यहां तक ले आऊंगा इस कर्व की शक्ल में, ऐसे सीकम तक, राइट इलियक फोसा तक। तो इसका मकसद है कि मैं यहां एक सी वेन बना दूं तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा ना कि मैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन की बात कर रहा हूं, और ये यहाँ के खत्म हो जाएगी। वो खत्म ऐसे तो कोई नहीं होता, यहाँ किसी न किसी के साथ एनास्टोमोस बना लेगी, वो चल के देखते हैं किसके साथ बनाएगी, ये अपनी किसी ब्रांच के साथ एनास्टोमोस बना लेगी, समझ गए। तो ये आपको चल के दिखाते हैं। इसका मकसद है कि इसकी बिगिनिंग देख ली और इसकी एंड हम देख लेंगे, और इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हुए, इसके इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गए इन गैप बिटवीन द अनसाइनेटेड प्रोसेस एंड रेस्ट ऑफ द हेड, और फिर क्रॉस किया किसको, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को, और ऐसे ही चलते चलते यहाँ आ गए। चलो यहाँ आ ही गए हैं तो थोड़ा सा और भी दिखा देता हूं कि जिस वक्त यहाँ ये एओर्टा, इस वक्त पेंक्रियास तो खत्म हो गया, अब एओर्टा किसके पीछे छुपा हुआ होगा, ड्यूडेनम के पीछे। जब ये ड्यूडेनम, यहां मैंने पेंक्रियास उठाया तो मुझे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पैदा होते हुए नजर आई, और मैं यहां से उठाऊंगा ना ऐसे, किसको, ड्यूडेनम को, तो मुझे एओर्टा से, उसके पेट से एक और बेटी का जन्म मुझे नजर आ जाना शुरू हो जाना चाहिए, और वो होगी मेरी इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। यानी आप ये सोच लो कि यहां से जब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी गुजर रही है तो वो ड्यूडेनम के आगे है कि पीछे है, आगे है, और ठीक इस वक्त ड्यूडेनम के पीछे कौन है, तो ये ड्यूडेनम जो है ये कैंची की तरह क्लिप्ड है कि नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी उस वक्त स्टार्ट हो रही है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी दरअसल गुजर रही है, उसकी स्टार्ट बहुत ऊपर से हो चुकी। तो ये कैसे है, ये यहां है और ये ऐसे क्लिप है, ये किसको क्लिप हो रही है यहां पर, ड्यूडेनम के थर्ड पार्ट को, ये आप देख रहे हैं, ये गई और ये गई। हाँ, ये और बात है कि ये आएगी तुम्हारे राइट की तरफ, वो जाएगी तुम्हारे लेफ्ट की तरफ। फर्क इतना है, लेफ्ट की तरफ क्यों, क्योंकि वो हांडीगट की आर्टरी है, लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगी तो और कहां जाएगी, क्योंकि उसको तो सप्लाई करना है डिसेंडिंग कोलन एंड अदर थिंग्स, और उसके लिए उसको यहां जाना है। यहां कैसे आएगी, यहां तो सीकम है, यहां तो अपेंडिक्स है, यहां तो असेंडिंग कोलन है, तो इनको सप्लाई करने के लिए तो मिडगट की आर्टरी आएगी, तो ये ऐसे जाएंगी लाइक दिस आल्सो, समझ गए। तो ये शेप जब मैं इसको ऐसे बनाऊं तो खुद ही तुम समझ जाओगे कि इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन की बात हो रही है। इनके आप शेप देख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आर्गन के हिसाब से किसका किस तरफ कोर्स है। ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूं कि इनके डायरेक्शंस और इनके शेप समझ लो, तो मैं जब बनाऊं तो मैं बोलूं ना मुंह से, आपको मुझे शेप से ही नजर आ जाना चाहिए किस आर्टरी की बात हो रही है, दरअसल किस वेन की बात हो रही है, क्योंकि जहां जो आर्टरी होगी उसके साथ सोई होगी उसकी वेन भी तो उसी हिसाब से ही होगी। चल के देखें यहां पे, अब सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी को थोड़ा सा आगे लेके आता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा और, ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये कहां बन रही है, ये यहां से निकल रही है, किससे, एओर्टा से। ये यहां से मैंने गायब किया है किसको, पेंक्रियास को, ताकि पीछे से कुछ नजर आए, और उसके बाद जैसे निकल के आ गई तो ये देखें यहां से ये थर्ड पार्ट को क्रॉस किया, और ठीक उस जगह से यहां से ये निकल रही है, ये इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये देखें आप यहां से, ये क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और देखो कहां जा रही है, देखो। और आपसे ये तो किसी के साथ एनास्टोमोस कर रही है, अपनी किसी ब्रांच के साथ एनास्टोमोस कर रही है। वो कौन सी ब्रांच होगी, चल के उसकी ब्रांचेस में काउंट करते हैं। लेकिन ये आप जहाँ पे आप ये तो ब्रोकन हो गई, भाई ब्रोकन इसलिए हो गई है क्योंकि ये बॉडी वाल में, ये जो पीछे जो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वाल है उसके ऊपर तो चढ़ा हुआ होता है पेरिटोनियम। ये समझिए, क्या सिर्फ पेरिटोनियम चढ़ा हुआ है कि यहाँ से मेसेंट्री भी उठी है, सिंगल वाल डबल वाल, ठीक है। तो यहाँ से जो मैं उठाऊंगा, ऐसे जो आप उठाएंगे, आपका स्वेटर भली सिंगल वाल्ड हो, सिंगल है, डबल तो नहीं है, लेकिन जैसे उठाएंगे ऐसे, तो जो मुट्ठी में फोल्ड होगा वो सिंगल होगा कि डबल होगा, समझ गए। तो ऐसे मेसेंट्रियाँ होती हैं, और उसके फ्री एंड में क्या मौजूद होगा, इंटेस्टाइन, वही तो आगे आया है। और उसके बाद अगर ये यहाँ है तो कॉइल वगैरह हो गया, तो मेसेंट्री उसके साथ चिपकी हुई होगी, और मेसेंट्री सिंगल के डबल है, डबल। तो अगर मेसेंट्री डबल है तो डबल वाल के बीच में क्या मौजूद होगा, वो गैप होगा, उस गैप में कौन आएगा, आर्टरीज आएंगे, समझ गए। आर्टरीज आएंगी तो किसको पहुंचेंगी जाके, उन आर्गन्स को, यानी इंटेस्टाइन वगैरह को। ये यहां तक आ गई है। क्या ये सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ये देखें ये क्या है, ये डबल लेयर दिखाया है, ये डबल लाइनें दिखाई है, दरअसल क्या है, ये यहां से मेसेंट्री रिफ्लेक्ट हुई है। क्या अब मेसेंट्री नजर आ रही है कि मैंने छुरी से यहां से इसे काट के इंटेस्टाइन बाहर फेंके हैं, तो ये क्या है, ये कट एज है किसकी, मेसेंट्री की। यहां से मेसेंट्री रिफ्लेक्ट हुई, तो आपसे वो कैसे काटा है आपने, मैंने इधर से काटा है ऐसे करके, किसको, ड्यूडेनम और जेजुनम की जंक्शन को,
और देखो यहाँ से काटा है मैंने इलियम के आखिरी आधे इंच को, तो मेरे हाथ में क्या है 20 फीट का लंबा इंटेस्टीन है अकेला के विथ मीजेंट्री, विथ मीजेंट्री। वो मैंने यहाँ पर डस्टबिन में फेंक दिया है। वो इधर मैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल देख रहा हूँ जिसमें से मैंने निकाल के दिया है आपको, क्या साफ करके दिया है, क्या ये इंटेस्टीन। इंटेस्टीन साफ किए हैं, ये नहीं किए मैंने साफ, कोलोन साफ नहीं किए हैं। स्मॉल इंटेस्टीन में जेजुनम इलियम में मैंने हटा दिया है अकेला विथ मीजेंट्री, मीजेंट्री। तो ये क्या नजर आ रहा है, ये लाइनें नजर आ रही हैं। और इस मीजेंट्री के ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है बिगिनिंग ऑफ द मीजेंट्री, रूट ऑफ मीजेंट्री। और इस रूट ऑफ मीजेंट्री में यहां से अगर कोई ब्रांच, अगर इसने कोई ब्रांच दी तो ये रूट के अंदर दाखिल हो जाएगी कि नहीं? क्या यहां से ब्रांचेस, यहां से रूट से, वो तो बाद में दाखिल करते हैं। ये जो सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी है अभी जाहिर नहीं हुई है, अनसाइनेड प्रोसेस और ब्रांचेस देना शुरू कर रही है। सुपीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी अभी जाहिर नहीं हुई है, यहां से ब्रांच, यहां से निकलेगी जरूर, और फिर भी कहां रहेगी, मीजेंट्री के पेरिटोनियम के पीछे ही। लेकिन जब यहां होगी और पेंक्रियाज के पीछे होगी तो क्यों ना पहली ब्रांच यहां से ही दे दे, ठीक है। कहां, अगर इसने पहली ब्रांच यहां से ही दे दी तो ये ड्यूडेनम के साथ ऐसे चलेगी, तो क्या ड्यूडेनम को सप्लाई करेगी कि नहीं? किस पार्ट को? थर्ड पार्ट को। और थर्ड पार्ट के साथ क्या सेकंड के हाफ को नहीं करेगी? क्या सिर्फ इसको करेगी? क्या अनसाइनेड प्रोसेस को भी करेगी? तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि ये है मेरी पैंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी? कौन सी वाली? इंफीरियर वाली, क्योंकि सुपीरियर से भी तो आ रही थी ना एक। तो आपसे अगर कोई पूछे कि बाबा फोरगट और मिडगट की आर्टरियों की जो मुलाकात यानी एनास्टोमोसिस होता है वो उनके किन दो मेंबर्स के बीच में होता है? वैसे तो सीलिएक की बहुत ब्रांचेस देखी थी आपने, सीलिएक से कितनी ब्रांचेस उठी हैं आप देखें, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, लेफ्ट गैस्ट्रोपेलाइक, राइट गैस्ट्रोपेलाइक, शॉर्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक, लेफ्ट गैस्ट्रो हेपेटिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी, गैस्ट्रोड्यूडेनल, सुपीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूडेनल, 10-12 आर्टरियां देखी हैं। लेकिन इनमें से कौन है जो सुपीरियर मीजेंट्रिक के किसी ब्रांच के साथ आके मीटिंग करेगा? इंफीरियर इसकी सुपीरियर पैंक्रियाटिको, तो फिर उसकी कौन सी है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि फोरगट और मिडगट आर्टरी के कौन से दो मेंबर आपस में बात करते हैं और एनास्टोमोस बनाते हैं और किस जगह करते होंगे? अपनी जंक्शन पे। वो सीधा बोलो कहां? जहां पर बाइल डक्ट की ओपनिंग होती है। इससे ऊपर होगी सुपीरियर पैंक्रियाटिको, नीचे होगी इंफीरियर पैंक्रियाटिको। तो इंफीरियर सुपीरियर, तो इसका मकसद है कि फर्स्ट ब्रांच ऑफ योर सुपीरियर मेसेंटेरिक विल बी इंफीरियर पैंक्रियाटिक-ड्यूडेनल। उसके बाद ड्यूडेनम तो हो गया खत्म, अब आ गया तुम्हारा जेजुनम और इलियम। अब जेजुनम इलियम में 20 फीट का, अब मैं क्या करूं? 20 फीट को एक आर्टरी दूं, 2 दूं, 3 दूं, कि डजन के करीब दूं मैं, ठीक है ना। और ये आर्टरिया मैं कहां एंटर करवाऊं? मीजेंट्री में, समझ गए? अब मीजेंट्री में आर्टरिया में एंटर कराऊं, पहले निकालो तो मीजेंट्री में एंटर हो ना। अब यहां से मैं निकाल रहा हूं, किधर? जब ये ड्यूडेनम को क्रॉस कर रही है, और ड्यूडेनम को क्रॉस कर रही है लेकिन है तो पेरिटोनियम के पीछे ही ना। अब ये आर्टरियां दे रही है कितनी? 10-12, ठीक है। अब ये 10-12 आर्टरियां कहां एंटर होंगी? मीजेंट्री के रूट में। रूट तक तो आए पहले, और यहां से डबल लेयर उठा है कि नहीं? और डबल लेयर उठा यहां से, तो ये किस में एंटर हो जाएंगी? उस डबल लेयर में। अगर ऐसे ही डबल लेयर में एंटर हो गई तो रूट ऑफ मीजेंट्री ज्यादा से ज्यादा कितना होगा? 2 फीट चले, 2 फीट। अगर ये 2 फीट में 12 आर्टरियां मैंने एंटर की और अगर मैं उनको पैरेलल चलाऊं तो आगे कितने इंटेस्टीन को सप्लाई हो पाएगी? हाँ, कितनी? अगर मैं यहां से उठाऊं ये आर्टरियां 12, ऐसे चलाऊं और आगे मैं यहां ले जाऊं तो कितने इंटेस्टीन को मैं सप्लाई कर पाऊंगा? 2 फीट को। लेकिन आगे क्या 2 फीट है कि 20 फीट है? तो इसका मकसद ये हो गया कि इन आर्टरियों को मैं ऐसे चलाऊं कि इसको मैं क्राउनिंग करूं मैं इन आर्टरीज की, तो इस आर्टरी को मैं रेडिएट करूंगा, ऐसे रेडिएट तो करूंगा। अगर एक एक आर्टरी में रेडिएट करूं, ये आर्टरी, ये आर्टरी, ये आर्टरी, इस तरीके से रेडिएट करूं, तो एक एक आर्टरी कितने कितने एरिया को सप्लाई करेगी? रफली 2-2 फीट को, ताकि 20 फीट कंप्लीट हो जाए, अगर ये 10 हैं तो। लेकिन ऐसा करना मेरा मसला तो हल कर देगा, मेरी 10 आर्टरियां 20 फीट को सप्लाई कर देंगी। लेकिन एक प्रॉब्लम ये रहेगा कि अगर इस आर्टरी में, किसी आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट आ गया तो मेरा कितना इंटेस्टिन्स आया होगा? 2 फीट का। लेकिन मेरी तरफ से ये सारा ज़ाया हो गया, क्योंकि ये सीरीज है।
अगर 2 फीट के अंदर यहाँ से फूड पास होता है और ये 2 फीट का एरिया आगे से फूड को पास ही नहीं करता है, तो आगे वाले 18 फीट किसी काम के हैं क्या? आपका 200 किलोमीटर का रोड है, अगर उसमें से सिर्फ 1 किलोमीटर में काट दूं तो आगे के 199 किलोमीटर किसी काम का रहा क्या? वहां तो ट्रैफिक ही नहीं जा पाएगी। इसका मकसद यह है कि नेचर ने इसका हल रखा है कि एक आर्टरी में अगर क्लॉट हो भी जाए ना तो दूसरी आर्टरियां उसको सपोर्ट कर सकती हैं। इसलिए तुम्हें इन आर्टरियों को आपस में मिला के एक प्लेक्सस सा बनाना होगा। और ऐसे प्लेक्सस को कब बनाना होगा? जब तुम मेसेंट्रियों के अंदर इंटर हो जाओगे। और मेसेंट्री के अंदर जैसे इंटर हो जाओगे तो फिर आर्टरी होती हैं ये वाली, जिसमें से ऊपर की आर्टरियां होंगी जेजुनल और नीचे की आर्टरियां होंगी इलियल, और ये होती हैं 10 से 12 या 15 इलियर और जेजुनल ब्रांचेस। तो नंबर 1 विल बी इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, नंबर 2 विल बी और ये कैसे हैं? जैसे अंदर इंटर होंगी ना, जैसे अंदर इंटर होंगी ये आपस में ऐसे मिल जाती है। और ये खेल कहां चल रहा है? मेसेंट्री के अंदर। मैं तो यहां बोर्ड पे दिखा रहा हूं, ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे कोई पेरिटोनियम के पीछे चल रहा है, ये मेसेंट्री के अंदर यानी बोर्ड से बाहर निकल आई हूं। तो इसका मकसद है कि ये यहां पर इस तरीके से यहां पर होंगी, और उसके बाद यकीनन अब लंबी लंबी आर्टरियां आएंगी ऐसे, जो फिर जेजुनम और इलियम के सरफेस तक पहुंच जाएंगे। अगर खुदा न खास्ता इसमें क्लॉट फंस गया तो क्या इसमें ब्लड बंद हो जाएगा कि दूसरी का ब्लड यहां आ जाएगा यहां पर? तो इसका मकसद ये है कि इस तरीके से यहां पर, हाँ ये और बात है कि यहां से स्लिप होके यहां आके क्लॉट फंस गया ना अगर, तो फिर बड़ा गरक हो जाएगा। कितने का? टुकड़े का ही सही, पूरे फिट का नहीं, थोड़े से हिस्से का। थोड़े से हिस्से का भी गया तो हमारी तरफ से तो सारा ही गया। ऐसी चीजों को हम कहते हैं आर्टीरियल आर्केड्स। ये मैंने आपको जेजुनम इलियम में बताए थे, आर्टीरियल आर्केड्स। और जो आखिरी इसकी सीधी सीधी आर्टरियां निकले तो उनको बोलते हैं वेसा रेक्टा। ये आप यहां पे चल के देखें कि इस तरीके से, जो मैं इस तरीके से बनाऊं ना अगर वेन्स, तो समझ लेना कि ये जेजुनल और इलियल वेन्स की बात हो रही है। ये इनको आप दोबारा भी आप देखें कि जेजुनल और इलियल वेन्स को मैंने कैसे बनाया। यहां पर आप देखें, यहां से आप, ये आपने यहां दिखाया क्या? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और ये क्या दिखाया? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इसने सबसे पहले क्या दी है? इसने इंफीरियर पैंक्रियाटिक को ड्यूडेनल दिए, और देखें ये ड्यूडेनम को सप्लाई किया, अनसाइनेट प्रोसेस को, और ये इस तरीके से यहां पर। और ये है वो जिसकी बात कर रहा हूं मैं। क्या है ये मेसेंट्री के अंदर तुमने आर्टरियां डाली हैं, ये आर्टरियां जेजुनल जिन्होंने मिलकर बनाया आर्टीरियल आर्केड, और यहां से निकले वेसा रेक्टा। अगर मेसेंट्री में तुम्हें एक आर्टीरियल आर्केड से ज्यादा 2 सीरीज मिले और लंबी लंबी तुम्हें वेसा रेक्टा मिले तो समझ लेना कि ये मामला जेजुनम का है। अगर तुम्हें एक से ज्यादा मिले, सिर्फ 3, 4, 5 सीरीज मिले और छोटी छोटी वेसा रेक्टा मिले और करीब करीब मिले तो समझ लेना कि ये इलियम। तो ये आपका जेजुनम के अंदर और ये आपका इलियम के अंदर। कहाँ इसे करोगे? तो मेसेंट्री में, क्योंकि मेसेंट्री बहुत थिन होती है तो ट्रांसल्यूसेंट होगी, नजर आ जाएंगी आपको। जैसे ना आप इस तरीके से करते हो तो कंजक्टिवा में तुम्हें वेसल्स नजर आती हैं, तो मेसेंट्री में भी तुम्हें इसी तरीके से वेसल नजर आएंगी। सिर्फ आर्टरियां नजर आएंगी कि वेन्स भी नजर आएंगी? तो ऐसी जब तुम्हें वेन में दिखाऊं तो समझ लेना कि जेजुनल इलियल वेन्स की बात हो रही है। अब सिर्फ क्या यही होगा? अब देखो ड्यूडेनम सप्लाई हो गया हाफ, उससे रिलेटेड छोटा सा हिस्सा पैंक्रियाज हो गया। जेजुनम इलियम के 20 फीट सप्लाई हो गए, फोरगट के एरिया, मिडगट के एरिया सप्लाई होते जा रहे हैं। अब आ गई सीकम और अपेंडिक्स, असेंडिंग कोलन और ट्रांसवर्स कोलन के 2/3 की बात। अब उसके लिए तुम्हें आर्टरियां जो चाहिए ना उसके लिए देखे, जैसे ये आपको देखो इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, और लेफ्ट तरफ से तुमने दिया है क्या? ये आप कह रहे थे लेफ्ट से मैंने क्यों दी भाई? जब तुम रूट के राइट तरफ पे हैं तो रूट में अंदर डालने के लिए तुम्हें आर्टरियां लेफ्ट से, राइट से निकालनी होगी कि लेफ्ट से निकालनी होगी? समझ ली? तो लेफ्ट से ब्रांचेस तुमने इस तरीके से निकाली हैं। अब जो निकालोगे, क्योंकि अब तुम्हारा खेल कहाँ है? अब तुम्हारा खेल है सीकम अपेंडिक्स असेंडिंग कोलन पर। तो इसका मकसद है कि अब की बार जो तुम आर्टरियां निकालोगे वो राइट से निकालोगे। अब राइट से आर्टरियां निकालने जा रहा है ये। अब देखिए यहां से, ये देखो कहां से निकाली है इसने? लेफ्ट से। अब निकाल रहा है राइट से। अब सबसे पहले जो आर्टरी निकाली है वो है ये, नाम इसका बाद में डालते हैं। अब देखें ये आर्टरी जो निकाली है इसको आप यहां पे देखें, किस तरफ आ रही है? कोलन की तरफ, असेंडिंग कोलन की तरफ। असेंडिंग कोलन की तरफ जैसे आई, एक ब्रांच दी इसने ऊपर, एक ब्रांच दी इसने ऐसे नीचे, अलोंग द राइट बॉर्डर ऑफ द कोलन। कौन सा कोलन? कौन सा?
असेंडिंग कोलॉन, ये सीकम से आ रहे हैं हम लोग, तो असेंडिंग कोलॉन के साथ ये, और ऊपर की भी कौन सी ब्रांच दी है इसने, असेंडिंग कोलॉन के साथ। कहाँ तक, जब तक तुम्हारा वो हेपेटिक फ्लेक्सर ना आ जाए। ये जो ब्रांच इस वक्त मैंने यहाँ पे दिखाई है यहाँ पर, ये सिर्फ यहाँ कोलॉन तो हेपेटिक फ्लेक्सर तक नहीं आएगी, ये ऐसे भी जाएगी कहाँ तक, ट्रांसवर्स कोलॉन तक। कितनी, 2/3 तक। उसको जरा चलो बस सही है, बस ठीक है, ठीक है, ये यहां तक हम लेके आएंगे। अब इसका मकसद है कि समझ गए कि ये कहां तक आ गई है। तो ये जो आपको यहां से उठा के दिखाया है, किससे आर्टरी से, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से, जहां से ये ब्रांचेस हमने दी थी जेजुनल इलियल, अब ये आपको ब्रांच दी है। इस ब्रांच का नाम है मिडिल कोलिक आर्टरी, कोलिक कोलॉन, ये मिडिल कोलिक आर्टरी है, क्योंकि हमारे पास 3 कोलिक आर्टरीज हैं, एक राइट, एक लेफ्ट और एक मिडिल। ये मिडिल कोलिक आर्टरी है। थोड़ा नीचे आए, राइट से एक और ब्रांच, वो भी किस तरफ बढ़ी है, राइट की तरफ। उसने भी एक ब्रांच ऊपर दी है, एक ब्रांच नीचे दी है। जो ऊपर दी है और जो नीचे दी है, ये वाली जो खुद है, इसका नाम है यहां पर राइट कोलिक आर्टरी। क्यों, राइट की तरफ है। इसकी जो असेंडिंग ब्रांच है वो इसके डिसेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोस, मिडिल कोलिक के साथ, और जो डिसेंडिंग ब्रांच है वो नीचे लटकी हुई है। इसको देखते हैं क्या करना है। मामला यहां खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये आपको पता है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी ऐसे सीधी नहीं गई थी, ये ऐसे आई थी, ठीक है कि नहीं। ये किधर आई थी, राइट इलियक फोसा तक। ठीक है, ये राइट इलियक, ये राइट कोलिक। अब जो तीसरी और लास्ट ब्रांच आ रही है इसकी, वो निकल रही है फिर वंस अगेन राइट से। इसकी एक ब्रांच ये है, कौन सी, असेंडिंग ब्रांच, जो किसके साथ एनास्टोमोस करेगी, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ राइट कोलिक के साथ। और इसकी एक ब्रांच ये है, ये ब्रांच जो है, ये ऊपर जो ब्रांच हमने उठाई है, ये इसकी कोलिक ब्रांच है, क्योंकि कोलॉन के साथ रन कर रही है। और ये जो ब्रांच मैं ये उठा रहा हूं ना, ये वाली, ये इसकी इलियल ब्रांच है। इसलिए इस ट्रंक का नाम पड़ गया है इलियोकोलिक आर्टरी, क्योंकि इसका एक ब्रांच असेंडिंग जो है वो कोलिक है और डिसेंडिंग वाला इलियल है। और वो जो इलियल है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ एनास्टोमोस कर देगा, यानी मदर ने अपने डॉटर के साथ ही एनास्टोमोस कर दिया है ताकि ये कंप्लीट हो जाए। समझ गए। अब ये जो मैंने यहां बनाया है, यहां से लेके इधर से लेके इधर से लेके यहां से लेके यहां तक, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जब सप्लाई करने के लिए आएंगी, किसको सप्लाई करेंगी, कोलॉन को। कौन से कोलॉन को, असेंडिंग पूरा, ट्रांसवर्स का आधा या 2/3। तो इससे क्या जाहिर हुआ, कोलॉन सप्लाई हो गया। लेकिन आप बोलेंगे सर सीकम और अपेंडिक्स में सप्लाई ही नहीं हुआ। सीकम अपेंडिक्स नहीं हुआ है तो सप्लाई कर देते हैं, लेकिन ये राइट से कौन सी ब्रांचेस निकली, नीचे से ऊपर अगर जाएं या ऊपर से नीचे तो मिडिल कोलिक, और साथ में ये, और ये कहाँ आके रुकी हैं, ये आपके रुकी हैं उसके बॉर्डरों के साथ, ताकि उनको आगे और पीछे से सप्लाई दे सके। और ये इस तरीके से इलियोकोलिक। अब यहाँ अगर आप आ गए तो यहाँ इधर तो सीकम मौजूद है कि नहीं, और यहाँ से निकला है क्या, अपेंडिक्स। तो यहाँ से इलियोकोलिक जो है इसकी जिम्मेदारी है कि सीकम को भी सप्लाई करे। ये नहीं कि ये इलियम के साथ है, इलियल ब्रांच के साथ उसने अपनी मदर के साथ एनास्टोमोस किया और इसने कोलोन को सप्लाई किया, नहीं, सीकम को भी सप्लाई करना है। तो ये कौन करेगा, क्या राइट कोलिक मिडिल कोलिक करेगी कि इलियोकोलिक ही करेगी। तो इलियोकोलिक अपने आप से 2 ब्रांचेस निकालेगी। एक ब्रांच सीकम के आगे आएगी, एंटीरियर सीकल, एक ब्रांच सीकम के पीछे जाएगी, पोस्टीरियर सीकल। तुम्हारा सीकम भी सप्लाइड हो गया कि नहीं।
सीकम सप्लाइड हो गया। अब जो नहीं हुआ है सप्लाइड वो है अपेंडिक्स। अब अपेंडिक्स से सीकम को 2 सप्लाईज हमने दिए हैं, अपेंडिक्स वैसे ही सीकम से निकलता है। इन दोनों में से किसी को उठाओ, एक ब्रांच दो और अपेंडिक्स को डाल दो, नाम डाल दो उसको अपेंडिकुलर आर्टरी। किस अपेंडिक्स की, किस सीकम की ब्रांच से मैं उठाऊंगा अपेंडिक्स को दूं, एंटीरियर वाली को कि पोस्टीरियर वाली को? क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स से इमर्जेस फ्रॉम द पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट ऑफ योर सीकम, दैट्स व्हाई दिस विल गिव योर ब्रांच टू अपेंडिकुलर। अब मुझे बताएं कि मिडगट की कोई ब्रांच ऐसी हो, मिडगट की कोई मेंबर ऐसा हो मिडगट का जिसको सुपीरियर मेसेंटेरिक ने सप्लाई न किया। ड्यूडेनम सप्लाई, इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, जेजुनम इलियम सप्लाइड, जेजुनल इलियल ब्रांचेस 12, 13। फिर सीकम सप्लाइड, एंटीरियर पोस्टीरियर सीकल, अपेंडिक्स सप्लाइड, पोस्टीरियर सीकल से अपेंडिकुलर ब्रांच। फिर अपने देखा असेंडिंग कोलोन सप्लाइड, इलियोकोलिक एंड राइट कोलिक। फिर आपका वो ट्रांसवर्स कोलोन का मोर देन 2/3 सप्लाइड मिडिल कोलिक से। ये पूरा आपका सप्लाई हो गया। अब आप अपने किसी भी आर्गन की अगर सप्लाई करना चाहेंगे तो आप देखें, स्टमक की सप्लाई कोई पूछे तो 5 सोर्सेस निकाल के ले आएंगे। अगर कोई जेजुनम इलियम की सप्लाई आपसे पूछे, अगर कोई जेजुनम इलियम की आपको सप्लाई पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? जेजुनम इलियम की सप्लाई, वो जेजुनल इलियल ब्रांचेस। अब वो एक एक आर्गन की सप्लाई, अब देखें अगर जेजुनम इलियम आप कर रहे थे जब, उस वक्त में आपको ये बताता कि ये जेजुनल इलियल ब्रांचेस होती हैं, सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, तो आप घबरा जाते कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी पता नहीं कहाँ से आती है। हम लोगों ने एओर्टा को उठा लिया और वहाँ से हमने ब्लड सप्लाई उठाई है। अब अगर ऐसा आप कर लेंगे तो आपकी ये मिडगट की सप्लाई भी हो गई। अब आप हाइंडगट की जब सप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी देखनी होगी। और इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जब आप देखेंगे तो देखें आप यहाँ कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी it emerges from aorta when at the time when the aorta was being crossed by third part of duodenum। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए सीकम है, ये अपेंडिक्स है, ये इलियोकोलिक आर्टरी आ रही है और इलियोकोलिक से 2 ब्रांचेस निकल रही है। देखिए एक एंटीरियर सीकल और पोस्टीरियर सीकल, और ये पोस्टीरियर सीकल ये ब्रांच दे रही है कौन सी? तो देख रहे हैं ये पोस्टीरियर सीकल जो सीकम के पीछे जाएगी और एंटीरियर सीकल जो इसके आगे आएगी, और ये इलियल ब्रांच है जो टर्मिनल पार्ट ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक के साथ मिलकर एनास्टोमोस क्रिएट कर देगी। ये देख रहे हैं यहाँ से, ये इसके साथ एनास्टोमोस बना दिया इसने, और यहाँ से आ रही है एंटीरियर और पोस्टीरियर सीकल, और पोस्टीरियर सीकल ने दे दी अपेंडिकुलर डी। अब देखें ये है हमारी इंफीरियर मेसेंटेरिक, कहाँ चली गई? लेफ्ट की तरफ। जैसे ये लेफ्ट की तरफ गई है, सबसे पहला काम तो इसने ये किया है कि इसने एक ब्रांच दे दी है। आप देखें यहाँ से, ये देखें यहाँ से गई, सबसे पहले इसने ब्रांच दे दी है ये, जिसने एक असेंडिंग एक डिसेंडिंग दी। जो डिसेंडिंग दी है वो किसके साथ रन कर रही है? डिसेंडिंग कोलोन के साथ तो सप्लाई किया। जो असेंडिंग दे रही है वो ट्रांसवर्स कोलोन के साथ, और एनास्टोमोस बना दिया किसके साथ? मिडिल कोलिक की वो जो ट्रांसवर्स ब्रांच, जो आपको जो मिडिल कोलिक की वो जो लेफ्ट ब्रांच है उसके साथ तो एनास्टोमोस करें। अब आपसे कोई पूछेगा कि मिडगट की आर्टरी सुपीरियर मेसेंटेरिक की कौन सी मेंबर इंफीरियर मेसेंटेरिक की किस मेंबर के साथ एनास्टोमोस बनाती है? जैसे सीलिएक की सुपीरियर मेसेंटेरिक और सीलिएक की सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल और सुपीरियर मेसेंटेरिक की इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, ये दोनों मिल गई थी कहां पर? जंक्शन ऑफ योर सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम पर, बाइल डक्ट की ओपनिंग पर। और यहां मिलेंगी कौन? यहां मिलेगी आपकी मिडिल कोलिक की राइट ब्रांच और असेंडिंग ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोलिक। ये ब्रांच जो इस वक्त आपको दिखाई जा रही है कौन सी है? लेफ्ट कोलिक। असेंडिंग इसके साथ मिल गई और डिसेंडिंग डिसेंड कर गई नीचे। किस पर? इतनी नीचे कि पूरा डिसेंडिंग कोलोन सप्लाई। अब आप समझिए जीआईटी तो और बाकी है, सिग्माइड कोलोन वो जो मौजूद है हमारे पेल्विस में, तो उसको कौन सप्लाई करेगा? यही करेगी। ये देखो यहां से दी इसने 3-4 ब्रांचेस, ऐसे इनका नाम पड़ जाएगा यहाँ पर सिग्माइड आर्टरीज। 3 या 4 होती हैं, ये आपस में एनास्टोमोस करके इनके साथ एनास्टोमोस करेगी, और इनके साथ कौन मिल जाएगी? वो डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ दी लेफ्ट कोलिक, सिग्माइड कोलोन सप्लाइड। आप सब हमारा तो अभी रेक्टम एनल कैनाल का अपर हाफ अभी बाकी है, कोई मसला नहीं है। अगर वो बाकी है तो इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी अभी बाकी है। क्या करूं उसको? मैं सीधा कंटिन्यूस करके ले जाऊंगा,
अब मुझे करना भी क्या है, रेक्टम और एनल कैनाल को तो सप्लाई करना है, मैं ऊपर से लेके जाऊंगा और मेरी कंटिन्यूएशन ही सप्लाई करेगी किसको, रेक्टम को। अब रेक्टम क्या थोड़ा सा एनल कैनाल है तो उसको भी चलो, ये जो आर्टरी है इसका नाम है सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ये क्या है, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। तो सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज एक्चुअली द कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। ये इसकी कंटिन्यूएशन है, ये इसकी टर्मिनेशन भी है। अब क्या ऐसे लटकाएंगे, क्या ब्लड ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप लटकेगा, ऐसा क्यों होगा, नीचे से कोई आएगा, लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को कोई सप्लाई करेगा, जब पेल्विस में चल के देखेंगे तो वो इसके साथ एनास्टोमोस कर देगा, तो हमारा काम हो जाएगा। आप बोले सर वो जो हमने ऊपर से भेजी थी वो लोअर हाफ ऑफ ईसोफेगस को हमने लेफ्ट गेस्ट्रिक आर्टरी दी थी, तो इसका ब्लड भी ड्रॉप बाय ड्रॉप चलेगा, ऐसे थोड़ी होगा। ऊपर से कोई आर्टरी आएगी वो इसके साथ एनास्टोमोस करेगी। ये ब्लड का सिस्टम इस तरीके से नहीं होता है कि कोई आर्टरी खत्म हो जाए यहाँ से, अंडरस्टैंड। तो यू विल एक्चुअली सी ऑल दीज आर्टरीज लाइक दिस। तो इसका मकसद है कि इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ब्रांचेस को आप जो फैलाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरीके से आर्टरियां इमर्ज होती हैं और किस तरीके से आर्टरियां बनती हैं। अगर ऐसी आर्टरियां बनाओगे तो ऐसी वेन्स भी बना सकते हो, समझ गए। अब इस डायग्राम को मैं हटा के, अब देखें ये आपकी देखी जो अभी आपको दिखाया मैंने, कौन सी, इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की ये ब्रांचेस जैसे सिग्मॉइड आर्टरीज, जैसे सुपीरियर रेक्टल ब्रांच, ये आपने यहां पे देखी है। अब देखिए यहां से इनको यहां पे रख के, इस डायग्राम सबको हटा के, बोर्ड को साफ करके, ये जितनी ब्रांचेस आपने देखी थी मैं अब उनकी वेने बना के लौटा के ले आऊंगा। आर्टरियां कहां से उठाई थी, एओर्टा से। उसूलन वेने कहां ड्रेन करनी चाहिए, इंफीरियर वेना केवा में, लेकिन क्योंकि ये वेने सब आ रही हैं जीआईटी से, तो ये जीआईटी का जो ब्लड होता तो डिऑक्सीनेटेड है, वो डाल देते हम लोग इंफीरियर वेना केवा में, कोई मसला था नहीं वैसे, लेकिन मसला है क्योंकि ये जीआईटी से आने वाला ब्लड सिर्फ डिऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं है, उनमें प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन भी हैं, और ख़ास तौर पे उसके अंदर प्रोटीन के प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन में नाइट्रोजन, अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन इज वेरी टॉक्सिक। इस नाइट्रोजन को भी डायरेक्ट डाल देते ना इंफीरियर वेना केवा में, तो अगले 1 घंटे के अंदर ब्रेन में इतना जमा हो जाता कि वो पेशेंट कोमा में चला जाता। तो हम क्या करते हैं, उस ब्लड को वापस ला के सीधा इंफीरियर वेना केवा में नहीं डालते, उसको हम लिवर में डाल देते हैं। इसका मकसद है कि एक आर्गन से गंदा ब्लड लेके एक और आर्गन में डाल दें। कभी ऐसा हुआ है कि आप अपने घर का गंदा पानी जो है किसी दूसरे के घर में डाल दें, ये पॉसिबल ही नहीं है। हर आदमी अपना गंदा पानी बाहर नाली में डाल देता है, इंफीरियर वेना केवा में डालता है। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हम क्या करेंगे, उस आर्गन से निकालेंगे। अब इस आर्गन से तो इतनी आर्टरियाँ गई थी तो इतनी वेनें होंगी। सीलिएक आर्टरी देखी थी ना आपने, तो सीलिएक आर्टरी की जगह पर पोर्टल वेन, अब तो पोर्टल वेन की बेशुमार ब्रांचेस होंगी, अंडरस्टैंड, तो उसकी बेशुमार ब्रांचेस होंगी। सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी की कितनी आर्टरियां देखी ब्रांचेस, तो उसकी भी इतनी वेन्स होंगी। इंफीरियर मेसेंटेरिक की चलो कम थी, उसकी ये तो कम से कम 30-40 वेन्स होंगी। ये 30-40 वेन को मैं क्या सबको मैं लिवर में डाल दूंगा क्या, नहीं। फर्स्ट ईयर के कुछ लोग होंगे वो प्रिंसिपल से बात करना चाह रहे हैं, मसला सेम है। यहाँ मसला सबका अलग अलग है कि एक ही मसला है, ये मेरा ब्लड डाल दो किसी तरीके से। तो हर आदमी अलग जाके प्रिंसिपल को फॉर्म देगा, या सारे लोग जो हैं मिला के कोई एक क्लर्क रखेंगे, फर्स्ट ईयर वाले भी फॉर्म उसको देंगे, सेकंड ईयर वाले भी, थर्ड ईयर वाले भी, सब जमा करके प्रिंसिपल को फॉर्म दिया जाएगा। तो सब जमा करके एक ही बंदे को देंगे आप, बंदा होगा एक ही। हाँ 2 लोब्स हैं तो उस एक बंदे को फिर 2 में स्प्लिट कर देना, ये और बात है। तो इसका मकसद है कि उस बंदे का नाम है पोर्टल वेन। यानी ये सारी 50-60 जितनी भी वेनें, जितनी आर्टरियां देखी थी उतनी वेनें, अब से 40 आर्टरियां करनी पड़ेगी। 12-15 तो जेजुनल इलियल थी, 2-3 तो कोलिक्स थी, 2 सुपीरियर पैंक्रियाटिक थी, 4-5 सोर्सेस थे तुम्हारे वो स्टमक के, ऐसी स्प्लीनिक थी। मकसद है कहने का कि इन तीनों की ब्रांचेस को मैं मिला के यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगा, मामला ही हल हो जाएगा, और उनके नाम डाल देंगे आप। एक दफ़ा जब डायग्राम बनाएंगे उससे आइडिया हो जाएगा, शक्ल से ही आइडिया हो जाएगा ये कुछ वेन की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि डायग्रामों से हमें अंदाज़ा हो गया है। शुरू में आधी तो बताई जाएंगे, आधी नहीं बताएंगे, आधी मैं बता दूंगा, और उसके बाद आस्ता आस्ता जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। और उसके बाद वो डायग्राम जब आप बनाएंगे ना, तो दिमाग में जब ऐसे बनाएंगे तो दिमाग में दोनों वेनों का नाम वैसे ही आ जाएगा, और इस डायग्राम से ही आपकी सारी वेनें हो जाएंगी। उसके लिए तो आपको फिर इवन टेक्स्ट पढ़ने की भी कोई खास ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो पोर्टल वेन हम बनाने जा रहे हैं। किससे बनाएंगे? वेन से। कौन सी वेनें? वही जो आर्टरियां देखी थी वैसी, लेकिन वो इंफीरियर वेना केवा में एंड नहीं करेंगी।
वो करेंगी लिवर में। तो देखे उसको बनाने जा रहे हैं। लाइट चलो। अब देखें यहां अब ये क्या है जी पैंक्रियाज। अब इसके पीछे आप देखिए ये इसका कहीं क्या था, ये बॉडी थी, ये टेल था, ये बॉडी और ये हेड, और यहां था कोई नेक। इस जगह पर पोर्टल वेन बनती है। पोर्टल वेन का जन्म होता है किधर? बिहाइंड द, ये होगा बिहाइंड ही, जाहिर है छुपा हुआ होगा बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज। बेटा इसको देखो जरा, इंपॉर्टेंट है यहां पर, अंडरस्टैंड। ये तो वीडियो में आ जाएगा ना, यहां ध्यान दो, वीडियो में आ जाएगा, वहां बना देना। नहीं अभी बनाना है क्या? अच्छा अभी नहीं फिर बनाना है, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है बना दो, कोई मसला नहीं। वो तुम बना रहे हो ना, सारे तुम्हें देख रहे हैं। नहीं अच्छी बात है। ठीक है जी। तो यहां क्या है? पोर्टल वेन बन रही। अब कैसे बन रही है ये देखना। अब मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझ लेंगे, और अगर कोई बताना चाहे तो मुझे वो दोहरा के बता भी सकता है। और ये कौन सी है? सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। और ये और बन गई क्या? किसमें एंटर हुई? लिवर के पोर्टा हेपेटिस में। अकेली के दो बन के? समझिए। तो अब आप को अगर पूछे कोई कि वेयर द पोर्टल वेन एंड हाउ इट इज फॉर्म, तो क्या बताएंगे? इस डायग्राम से। टेक्स्ट मैंने लिखा ही नहीं, वो बताया भी नहीं है पहले कभी। आर्टरियों को मैंने डिस्कस किया, और तुम इसका डायग्राम को देख के टूटा फूटा जितना बता सकते हो। पोर्टल वेन इज फॉर्म्ड बिहाइंड द नेक ऑफ पैंक्रियाज बाय द कन्फ्लुएंस ऑफ, बात ही खत्म। आपको आराम से आपका एमसीक्यू सॉल्व हो गया। वो पोर्टल वेन बन गई, वो तो बनी, लेकिन जैसे पोर्टल वेन बनी है तो दिस आर सेंट्स नाउ लिवर पोर्टा हेपेटिस में। अकेली गई है कि हेपेटिक आर्टरी भी गई होगी इसके साथ, समझ गए? और ये दो में स्प्लिट हो गई, ये इस तरीके से यहां बन गया। अब देखें पोर्टल वेन के साथ अब इनकी हम बनाएंगे वेरियस ट्राइब्यूटरीज। एक तो बन गई इसकी ये कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइब्यूटरीज कहते हैं, जिससे वो बनी है, लेकिन उसके बाद सिर्फ इनसे बनी है तो ये तो नहीं, ट्राइब्यूटरीज और भी हैं। तो कैसे हैं? कुछ मैं बना दूंगा। अब यहां से देखें, ये एक वेन सिस्टिक वेन, ठीक है? तो किसकी ट्राइब्यूटरी होगी? गॉलब्लैडर से आई है, कहां ड्रेन करेगी? पोर्टल वेन में कि पोर्टल वेन के ब्रांच में? ये एक्चुअली बस फर्क ये है, ये पोर्टल वेन की ब्रांच में मैं क्यों ड्रेन कर रहा हूं? क्योंकि हेपेटिक आर्टरी राइट से ही उठाई थी ना हमने, तो ये राइट में ही डालेंगे कि नहीं? ये सिर्फ फर्क है कि ये राइट में नहीं डालते। ये पोर्टल वेन की ट्राइब्यूटरी है। ये बात आ गई समझ में? आ जाए आप देखें, ये कुछ नजर आ रहा है ना, क्या है? स्टमक। अब ये अगर मैंने यहां बनाया ऐसे, ठीक है, ये लेसर कर्वेचर के साथ है, ये क्या होगी? राइट के लेफ्ट? ऊपर कौन सी होती है? और ये राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये किसकी, उधर किसकी ब्रांच थी? सीलिएक की। यहां सीलिएक की जगह पे कौन है?
पोर्टल वेन है, तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किस में ओपन होनी चाहिए? तो इसका मकसद है कि लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी को तुम डायरेक्टली पोर्टल वेन में डालोगे। तो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को कहां डालूं? देखो, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी? सीलिएक की के हेपेटिक की? हेपेटिक की थी ना ब्रांच। तो वो जो उसके नाम पे वेन होनी चाहिए वो हेपेटिक वेन में ड्रेन होनी चाहिए, लेकिन क्या हेपेटिक वेन में ड्रेन होगी? क्योंकि हेपेटिक वेन पोर्टल सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। वो तुम्हें पोर्टल सिस्टम में जाना है, नहीं जाना है तो उसकी जगह पे किसको आना चाहिए? जहां हेपेटिक आर्टरी नहीं होती उस जगह पे कौन होता है? पोर्टल वेन होती है। जब पोर्टल वेन होती है तो फिर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी को भी कौन रिसीव करेगा? पोर्टल वेन रिसीव करेगी। फर्क हो गया कि नहीं? तो पोर्टल वेन, इसका मकसद है कि राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज बोथ इंटर इनटू पोर्टल वेन। उसके बाद जैसे आप यहां पे आओगे, थोड़ा नीचे आओ तो राइट गैस्ट्रिक का मसला मैंने हल कर दिया। उसके बाद हेपेटिक आर्टरी से एक और वेन आर्टरी उठी थी, गैस्ट्रोड्यूडिनल। ठीक है, तो क्या उठी थी? गैस्ट्रोड्यूडिनल। अगर गैस्ट्रोड्यूडिनल वेन भी होती, ये पी बंद कर देना, ये सेनो के, बल्कि हो ही गया वो, ये प्रोजेक्टर बंद कर देना। प्रोजेक्टर इधर है ना, पी, हाँ और क्या, प्रोजेक्टर बस सही है, ठीक है। चलो सही हो गया, ठीक है। तो ये यहां पर तो कौन सी आर्टरी उठाई थी आपने? गैस्ट्रोड्यूडिनल। किससे? हेपेटिक से। तो गैस्ट्रोड्यूडिनल नाम की अगर कोई वेन हुई तो किस में इंटर होनी चाहिए? हेपेटिक में। लेकिन कोई हेपेटिक है नहीं, तो किस में? कौन सी आर्टरी? गैस्ट्रो। तो कौन सी वेन? गैस्ट्रोड्यूडिनल वेन। किसके आगे होती है? रादर गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी किसके पीछे होती है? ड्यूडिनम के पीछे। तो वेन किसके पीछे होनी चाहिए? ड्यूडिनम के पीछे। ड्यूडिनम के पीछे तो नहीं है वो, ये थोड़ा इधर आऊंगा मैं तो ये पाइलोरस के पीछे है। वो पाइलोरस के पीछे भी नहीं है, एक्चुअली पाइलोरस के आगे है वो। फर्क देखें क्या है, किसके आगे? तो उसका नाम है प्री पाइलोरिक वेन। क्या नाम है इसका? तो प्री पाइलोरिक वेन इज इक्वलेंट टू विच आर्टरी? नाम उसका बदला है इसलिए क्योंकि वो ना तो गैस्ट्रो है ना तो ड्यूडिनल है किसके आगे? पाइलोरस के आगे है, तो उसको हम कहते हैं प्री पाइलोरिक वेन। तो वो प्री पाइलोरिक वेन शुड बी एक्चुअली अ ट्राइब्यूटरी ऑफ व्हाट? हेपेटिक। लेकिन हेपेटिक नहीं है तो किसकी? तो इसका मकसद ये है कि प्री पाइलोरिक वेन। और यहां ये कौन सी थी? सिस्टिक वेन। ये थी राइट गैस्ट्रिक। यानी आप जब पोर्टल बनाए ना तो दो ऐसे करें, दो ऐसे करें, होगा कि नहीं? लेफ्ट राइट गैस्ट्रिक, सिस्टिक, पेरिपाइलोरिक, और उससे निकली दो तो वो तो हो गई। यहां तक आ गया समझ में? अब यहां से देखें तुमने ये दो सोर्सेस, तो स्टमक के सोर्सेस वेन्स अभी और नहीं बनी है। अब यहां पर आप देखें ये स्प्लीनिक है। क्या सिर्फ स्प्लीनिक है कि पैंक्रियाटिक भी होगी? ठीक है, और यहां से ये है, लेकिन यहां बात नहीं करते, सीधा सीधा बोल देते हैं। क्यों? गुड। किसकी ट्राइब्यूटरी? जैसे था वैसे ही स्प्लीनिक की। राइट गैस्ट्रोपिपलाइक, वैसे किसकी ट्राइब्यूटरी? उधर राइट गैस्ट्रोपिपलाइक वाज द ट्राइब्यूटरी ऑफ आर्टरी। किसकी थी? किसकी ब्रांच थी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। और गैस्ट्रोड्यूडिनल किसकी? हेपेटिक की। लेकिन क्या इधर हेपेटिक है? नहीं है, तो पोर्टल, हमारे लिहाज से पोर्टल। लेकिन देखिए फर्क क्या है, यहां से जो मैंने घुमाया ऐसे, तो ग्रेटर कर्वेचर जो इतना नीचे है, और यहां से जब ब्रांच में उठाऊंगा तो क्या बेटर लगता है? पोर्टल में कि सुपीरियर मेसेंटेरिक में? किस में? सुपीरियर मेसेंटेरिक में।
ऐसे भी नहीं है कि जहां तुम्हें हेपेटिक न मिले तो हर हाल में पोर्टल, लेकिन अगर बात इतनी नीचे आ गई तो पोर्टल क्यों? सुपीरियर मेसेंटेरिक। तो ये डिफरेंस है कि नहीं है? तो दिस डिफरेंस। तो आपको डायग्राम से अंदाजा हो गया कि नहीं कि ये सुपीरियर मेसेंटेरिक में ओपन होगी। तो दिस विल इंटर इनटू द सुपीरियर मेसेंटेरिक। अब आ जाए यहां पर सुपीरियर मेसेंटेरिक, यहां इंटर, और ये सारी चीजें आपने देखी। इसका मकसद ये है कि सोर्स जो होगा, वीनस सोर्स ऑफ योर स्टमक तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? पांचों सोर्स मिल गए, लेकिन पांचों सोर्सेज में जो डिफरेंस हुआ वो आप हमने देख लिया। लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक डायरेक्ट पोर्टल में, और आपने देखा कि ये शॉर्ट गैस्ट्रिक वो तो वैसे स्प्लीनिक की थी, लेफ्ट गैस्ट्रोपिपलाइक वो भी वैसे स्प्लीनिक की थी, लेकिन राइट गैस्ट्रोपिपलाइक इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक, नॉट दी पोर्टल। अब आ जाएं, देखें ये देखें, ये पेंक्रियाज है ना, मैं यहां से वैसे ही गोल बना रहा हूं ऐसे। तो ये कौन सी आर्टरी? सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल। किसकी ब्रांच थी? गैस्ट्रोड्यूडिनल की। वो किसकी? हेपेटिक की। हेपेटिक है नहीं तो फिर किसमें? तो डायरेक्ट देखो पोर्टल में ड्रेन कर दिया ना मैंने इसको, तो ये पोर्टल में ड्रेन हो गई। लेकिन इंफीरियर पेंक्रियाटिक ड्यूडिनल किसकी ब्रांच थी? वो तो वहां पर भी सुपीरियर मेसेंटेरिक की पहली ब्रांच, तो यहां पर भी सुपीरियर मेसेंटेरिक की ब्रांच। तो गोलाई आपको वैसे ही बता रही है सेम। उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएं, क्या है ये? और सेम। फिर देखो यहां से हो गया सिंपल, जैसे होता है सब, कोई डिफरेंस ही नहीं, समझ। लेकिन सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन्स के बीच में सबसे बड़ा फर्क कौन हुआ? राइट गैस्ट्रोपिपलाइक। ये एडिशनल हो गई उसके साथ, समझ गए। यहां तो ये हुआ। अब आ जाता हूं मैं इंफीरियर, बाकी क्या रह गया? हाइंड गट का एरिया रह गया। हाइंड गट किधर से आता है? लेफ्ट से। इंफीरियर मेसेंटेरिक किधर से आएगी? लेफ्ट से। किसकी कंटिन्यूएशन होगी? सुपीरियर रेक्टल की, सुपीरियर रेक्टल वेन की। और ये किस में आके ड्रेन करेगी? पोर्टल सिस्टम में। तो ड्रेन किस में करे? पोर्टल सिस्टम में। तुम्हें अब क्या मिलता है? पोर्टल सिस्टम की तीन बड़ी आर्टरियां कौन सी थी? पोर्टल खुद, सुपीरियर स्प्लीनिक और सुपीरियर मेसेंटेरिक। अब तुम इसको लेके आओ और किसी न किसी में ड्रेन करो, करना तो है। चलो क्या क्या लेके आएगी अपने साथ? सुपीरियर रेक्टल वेन, सिग्मॉइड वेन, ठीक है, लेफ्ट कोलिक वेन। हो गया सब। खुद किधर फिर? बताएं जल्दी बताएं, मैं थक गया हूं, बताएं। क्या आसान रहेगा? स्प्लीनिक वेन में आसान क्या रहेगा? इधर से आ रहे हो, इतनी पोर्टल वेन की ब्रांच, इतनी उसकी बेटी, सबसे बड़ी बेटी उसकी यहां बैठी हुई है, और तुम कहोगे मैं पोर्टल वेन में डालूं, और मैं सुपीरियर मेसेंटेरिक में। सुपीरियर मेसेंटेरिक में क्यों? तुम आ रहे हो इधर से, वो है इधर, एक कार्नर पे, दूसरी ये बीच में तुम्हें मिल रही है, डाल दो। तुम्हारा ब्लड कोई लेके भाग नहीं जाएगा, ये वैसे ही ज्वाइन करेगी। कहाँ? सुपीरियर मेसेंटेरिक। वैसे भी सुपीरियर मेसेंटेरिक पोर्टल में जानी है, इसको भी तो पोर्टल में जाना है। ये कौन सी चली जाएगी अमेरिका? ये भी इधर ही रहेगी, तुम डाल दो इसके अंदर। तो देखो स्प्लीनिक की सबसे बड़ी डिफरेंस स्प्लीनिक वेन के मुकाबले में क्या हुआ? इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन। तो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन है। डायग्राम आप बना लें, आपका डायग्राम 5 मिनट के अंदर ये तय हो जाएगा। अब ये मैंने बना के दिखाया आपको, तो इसका मकसद ये हुआ, तो ये तो बनाया। ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आपने देखी थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन क्या ये सिर्फ ये है कि ईसोफेगस में भी जाएगी? तो ईसोफेगस को सप्लाई करेगी लोअर हाफ को लेफ्ट गैस्ट्रिक। तो ये इंफीरियर एनल कैनाल को कौन सप्लाई करेगा? सुपीरियर रेक्टल। और नीचे से कोई वेन आएगी और ऊपर से कोई वेन आएगी, तो एनास्टोमोस बन जाएगा। समझ गए? तो यहां इस तरीके से, अब ये जो डायग्राम इस तरीके से हमने बनाया, इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके आप 1 मिनट के अंदर आप ऐसे बना सकते हो।
अब देखें 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 मैं कैसे बना रहा हूँ ये। अब देखिए ये इतना सिंपल डायग्राम है आपका। पोर्टल वेन फाउंड बाय द यूनियन ऑफ योर स्प्लेनिक विथ द पोर्टल, एंड पोर्टल की ट्राइब्यूटरी में क्या आ गया? पोर्टल की ट्राइब्यूटरी में आ गया सिस्टिक, प्रीपाइलोरिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक। और इसके बाद जैसे आप नीचे आ गए तो सुपीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल खुद भी। और फिर हमने यहाँ पे देखा कि स्प्लेनिक में वही शॉर्ट गैस्ट्रिक, वही पैंक्रियाटिक, और ये देख लिया आपने लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लाइक, और ये शॉर्ट गैस्ट्रिक, और यहाँ स्प्लेनिक आर्टरी आ गई यहाँ पर। और जैसे आप यहाँ नीचे आ गए तो आपको सुपीरियर मेसेंटेरिक में जो मेन चीज़ मिली वो क्या मिला? राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक। उसके साथ साथ बाकी आर्टरियाँ तो उसकी वैसे ही हैं। ये यहाँ पर आपने देखी कि इंफीरियर पैंक्रियाटिक ड्यूडेनल, उसके बाद जेजुनल इलियल ब्रांचेस, और फिर मिडिल कोलिक, राइट कोलिक एंड इलियोकोलिक, जिससे दो पोस्टीरियर एंटीसिकल और अपेंडिकुलर। और फिर यहाँ पर देखा स्प्लेनिक में एडिशनल चीज़ क्या आ गई? ये वाली इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और इंफीरियर मेसेंट्रिक की तो वैसे ही ब्रांचेस हैं सिग्माइडल, और साथ में आपने ये लेफ्ट कोलिक, और आखिर में आपने देखा सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। आप ये इतना डायग्राम इतना सिंपल करके आप अंदाजा लगाएं, और भी सिंपल कर देना तो आपका ऐसा है। ऐसे सिंपल है, समझ गए? ये कितनी देर लगी? 10 सेकंड। तो इतना सिंपल ये है तुम्हारा ये पोर्टल सिस्टम। तो ये कुदरत ने ये पूरी जीआईटी, अब आपका कोई आर्गन मुझे बताएं, कोई ग्लैंड, कोई आर्गन नहीं बचा है जो ड्रेन नहीं हुआ होगा। ये सारे के सारे अपना ब्लड जोड़ के इस आखिरी ये जो इसका एमएन है ना, एमएन है जो इनका पोर्टल वेन, सारा इसमें डाल देंगे, सारा इसमें डाल देंगे। उसके बाद वो अंदर स्प्रेड कर देगा, फिर उसकी मर्जी अंदर जाके फिर उसको लिवर हाफ ऑफ कर दे, भले वो राइट और लेफ्ट है लेकिन उसको 50-50 कर देगा, और 50 करके उसको साइनोसाइड्स में पुटअप कर देगा। जहाँ पर तुम्हारी हेपेटिक आर्टरी भी पहुँच चुकी है, दोनों के ब्लड जो है वो साइनोसाइड्स में मिल जाएंगे, और हेपेटोसाइड्स उनका तियापाचा कर देगा, और आखिर में बाकी चीज़ों को मिला देगा अंदर सेंट्रल वेन में। और सेंट्रल वेन जुड़ जुड़ा के आखिर में हेपेटिक वेन्स निकालेंगी। वो अब इंफीरियर वेना कैवा में चले जाए, अब हमें कोई परवाह नहीं। लेकिन इस दौरान उसने टोल टैक्स दिया है, कहाँ? टैक्स पे किया है उसने लिवर में, और लिवर उनको पूरा साफ कर देगा। लेकिन अगर कहीं लिवर में कोई मसला हुआ और ये नाइट्रोजन इधर आया है और लिवर ने नहीं किया उसको, अगर डिटॉक्सीफाई यानी उसको यूरिया में कन्वर्ट नहीं किया, तो यही नाइट्रोजन इंफीरियर वेना कैवा में चला जाएगा। तो लिवर ने फंक्शन ही नहीं किया, और ये जमा हो जाएगा ब्रेन में, पेशेंट कोमा में चला जाएगा। और यही होता है हमारे सिरोसिस ऑफ लिवर के और हेपेटाइटिस के पेशेंट में। वो क्यों हो जाते हैं, वो कोमा में क्यों चले जाते हैं? वजह इसकी ये होती है नाइट्रोजन। फिर क्या करते हैं? फिर हम लोग उसका नाइट्रोजन खारिज करने की कोशिश करते हैं, स्टूल ज़्यादा आ जाए, डायरिया हो जाए उसको, ताकि निकल जाएं, बैक्टीरिया निकल जाएं, प्रोटीन न खाए वो, कुछ बैक्टीरिया को हम डैमेज करें, ये करके पेशेंट को कुछ न कुछ उसको कोमा से हम निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसका हल तो यकीनन तब है जब उसका लिवर चेंज होगा, यानी लिवर ट्रांसप्लांट होगा। तो दिस विल बी एक्चुअली लाइक, तो इसको हम कहते हैं द पोर्टल सिस्टम। तो अब आप अपने किसी भी आर्गन को उठाएं और इस वक्त उसका ब्लड सप्लाई और वीनस ड्रेनेज करें, निकल आएगी, डायग्राम से निकल आएगी। अंडरस्टैंड? तो दिस वाज योर क्लास।